Now children, today we are going to understand the concept of acceleration. हम फिर से दो buses का example लेंगे. So take one bus which is of green color and this is moving with uniform speed. That means same displacement, same distance in same time interval, right? Now take example of another bus, red bus. It starts from rest but then accelerates and moves with a speed. Have you noticed the difference between the two buses? The one bus which is starting from rest and then moving with same speed, or we can say same velocity. That means neither it is changing the magnitude of the speed nor it is changing direction. ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रही है और ये अपनी जर्नी पर यूनिफॉर्म स्पीड से निकल जाती है. लेकिन जो दूसरी बस है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है पर उसका ड्राइवर एक्सेलरेट करता है बस को. उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है. क्यों? डायरेक्शन नहीं बदल रहा उसका, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल रहा है. ध्यान से देखो, वो स्ट्रेट लाइन पर सेम डायरेक्शन में चलेगी लेकिन उसकी रफ्तार, उसका स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड changes. It starts from rest but then it accelerates and goes zoom. So here red bus is changing its velocity because its speed is increasing. Just pay attention that its direction is not changing but its speed is increasing. Maybe that a bus driver uses its brakes while moving. This bus is coming and then its driver uses brake and then it slows down and then it becomes at rest. Then also its speed is changing, its magnitude is changing. This time its magnitude of velocity is decreasing. So if speed is decreasing with time or speed is increasing with time, although the bus is moving in the same direction, then we say velocity is changing. Listen to me again. If speed, that is magnitude of velocity, is either decreasing or increasing with time, although its direction remains same, we say that velocity is changing. Now take another example. Now this time the bus is moving with constant speed, but here at the turn of the journey it moves on right side and that means it changes its direction. So again velocity changes. Although its speed is not changing but direction is changing, so we will say that bus is changing its velocity. Another example, a driver is continuously increasing its speed as well as it is turning also at the turn. So in this case, not only speed is increasing but also direction is changing. So what we learned? We learned either magnitude of velocity, that means speed is increasing, or speed is decreasing because driver is using brakes. तो या तो रफ्तार बढ़े या घटे, या vehicle और object is changing its direction. डायरेक्शन बदलेगी तो भी वेलोसिटी बदलेगी, और अगर स्पीड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी तो भी वेलोसिटी बदलेगी. एंड इंटरेस्टिंगली, change in velocity in 1 second is called acceleration of the object. So what we learn, children, that either magnitude of velocity, that is the speed, changes, or direction of motion changes, or both magnitude of velocity and direction of motion changes, we say that velocity is changing. Now rate with which this velocity changes with time is called acceleration. That means change of velocity in unit time. एक सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं. तो एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम देखते हैं कि कितना चेंज वेलोसिटी में आया और इसके लिए कितना टाइम उस ऑब्जेक्ट ने लिया. तो चेंज इन वेलोसिटी को जब आप टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो, जिस टाइम में ये चेंज हुआ, then we say that this is acceleration. अब अगर इसको मैथमेटिकल सिंबल्स में लिखें, क्यों?
क्योंकि बार बार एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, इतना बड़ा एक्सप्रेशन बार बार यूज़ करने की जगह हम सिंबल्स का यूज़ करके इक्वेशंस को, फॉर्मूले को छोटा कर सकते हैं। कैसे? मान लो कि कोई बस, कोई ऑब्जेक्ट है जो यू मीटर पर सेकेंड है ना, यू मीटर पर सेकेंड से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कहें कि 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से कोई बस जा रही थी और उसकी वेलोसिटी 1 घंटे में बढ़कर 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। समझ में आई ना बात? तो इसी बात को हम सिंबल्स में कैसे कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट यू मीटर पर सेकेंड से जा रहा था और टी सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी वी मीटर पर सेकेंड हो गई। यू हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इनिशियल वेलोसिटी को लेते हैं और वी फाइनली जो बॉडी ने वेलोसिटी गेन की उसको वी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और टी है टाइम को रिप्रेजेंट करना। तो वी माइनस यू यानी फाइनल जितनी वेलोसिटी उसकी फाइनली हो गई, उसमें से अगर आप इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी थी शुरू में हमने टाइम इंटरवल में सीखा था ना, t इक्वल टू 0 टाइम पर, तो शुरू में अगर उसकी वेलोसिटी u थी, बाद में v हो गई, देन वी विल से दैट v माइनस यू इज चेंज इन वेलोसिटी। सो v माइनस यू डिवाइडेड बाई द टाइम टेकन बाई द बॉडी टू ब्रिंग दिस चेंज, then v minus u upon t is called rate of change of velocity और acceleration। अब अगर वेलोसिटी घट रही है, जैसे बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, वेलोसिटी इज स्लोइंग डाउन, यानी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है क्योंकि वेलोसिटी घट रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। लेकिन अगर वेलोसिटी स्पीड अप हो रही है, जैसे आप अपने स्कूटर का एक्सेलरेटर लेते हो तो स्कूटर की वेलोसिटी बढ़ती है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा हो, देन वी से द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब इंक्रीज पॉजिटिवली, उसको भी हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ऑब्वियसली विल बी यूनिट ऑफ वेलोसिटी अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। अब वेलोसिटी की यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट है सेकेंड, तो एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब अगर शॉर्ट में सिंबल्स में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखें तो एक्सेलरेशन को हम सिर्फ अल्फ़ाबेट स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a इज v माइनस यू अपॉन t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच दिस चेंज अकर्स। तो अगर हम इस t को इधर ले आएँ तो a t कैन बी रिटन एज इक्वल टू v माइनस यू, और अगर इस u को भी इधर ले आएँ तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। This is the equation, famous equation of motion, the first equation of motion. But interestingly, acceleration is also a vector quantity like velocity, but direction of acceleration is direction of change of velocity. ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाना हुआ तो इस पर हम ज़्यादा परेशान नहीं होंगे क्लास 9th में, बस इतना समझ लेंगे कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा होता है उसे हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन और दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर कोई बस इस तरीके से, हमारी बसेस कैसे चल रही थी, इधर जा रही थी ना, तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लेकिन जब बस टर्न करती है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है और उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन कॉज होता है। पर अगर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन देखना हो तो हम ध्यान करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्शन इन विच चेंज ऑफ वेलोसिटी अकर्स। मतलब इधर नहीं जाना, ये तो डायरेक्शन पहले ऐसे था और फिर ऐसे हो गया। ये दोनों वेक्टर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इनका सम, इनका एडिशन, इनको डील करना मैथमेटिकली बिल्कुल अलग है। और आप क्लास 11th में वेक्टर क्वांटिटीज़ को मैथमेटिकली कैसे डील करना है वो पहली बार सीखेंगे। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि अगर कभी आपसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, तो आप कभी भी नहीं कहोगे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। और दूसरी तरह से कह सकते हैं कि जिस फोर्स की वजह से ये चेंज हो रहा था उस फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी अगर इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, और एक दूसरे से उल्टी होगी अगर डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। अब जैसे हम पिछली क्वांटिटीज़ में देख रहे थे कि क्योंकि ऑब्जेक्ट का मोशन जो है, एक बस रास्ते पे जा रही तो आप सोचो उसकी डायरेक्शन भी बदल रही है, कभी ब्रेक लग रहा है, कभी एक्सेलरेटर ले रहा है ड्राइवर, तो वेलोसिटी जो है वो लगातार बदलती है। इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दो टर्म हमने पढ़े थे, और यहाँ भी
हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, क्योंकि कभी ड्राइवर खाली रास्ता पा जाता है और ज़ोर से एक्सेलरेटर दबाता है और वेलोसिटी तेज़ी से बढ़ती है, और कभी ड्राइवर को बहुत भीड़ भरा रास्ता दिखता है और वो ब्रेक लगा देता है। कभी तो उसको अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है कि जो बस है या कार है वो बहुत तेज़ रफ्तार से रुकती है, एक्सीडेंट को रोकने के लिए अचानक से पूरी ताकत से ब्रेक लगा देता है। यानी कि गाड़ी की रफ्तार चाहे रुके और चाहे तेज़ हो, रेट अलग अलग हो सकता है और एक्सेलरेशन भी फिर अलग अलग रेट से होगा। तो इफ़ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, अगर 1 घंटे में किसी बस की रफ्तार हर बार 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है या 10 किलोमीटर पर आवर घट जाती है, तो हम कहेंगे कि हर घंटे बस की रफ्तार 10 किलोमीटर पर आवर ही बढ़ रही है या 10 किलोमीटर पर आवर ही घट रही है, तो उसका एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है, इक्वल टाइम में इक्वल चेंज आए। बट इफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म, तब क्या होगा? कोई बस चल रही है और अचानक से एक्सेलरेटर ले लिया तो बस की रफ्तार अचानक थोड़े ही सेकंड में बहुत तेज़ हो गई, और अगर हमको रास्ता नहीं मिला और हमने अचानक से ब्रेक लगाया तो बस की रफ्तार थोड़े ही सेकंड में बहुत कम हो गई। अगर हमको रास्ता आराम से खाली मिल रहा है और हम एक्सेलरेटर पर आराम से पैर रखे हुए हैं तो एक डेफिनेट रेट से इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी। तो व्हेन एक्सेलरेशन or increase or decrease of velocity is unequal in equal time interval, then we say that acceleration is non-uniform. अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोग अपने इस क्लास में आगे भी पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ के फोर्स की वजह से कोई चीज़ जब छोड़ी जाती है हाइट से और वो नीचे गिरती है तो वो अर्थ के पुल की वजह से उसकी स्पीड बढ़ती है, लेकिन ये जो स्पीड में इंक्रीज़ है वो यूनिफॉर्म होता है। हर इक्वल टाइम में उसकी रफ्तार में जो इंक्रीज़ आता है वो इक्वल होता है। तो एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। और ये जो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू ऑन एन एवरेज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है अर्थ की सरफेस पर। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो ये वैल्यू नहीं बदलती है, पर प्रैक्टिस में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थ्रू आउट द सरफेस ऑफ अर्थ थोड़ा सा बदलता भी है। हालांकि ये चेंज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन शेप ऑफ द अर्थ इज लिटिल फ्लैट एट द पोल्स। यहाँ पर थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है जाकर अर्थ, क्योंकि वो रोटेशन कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट, और उसकी वजह से यहाँ पर उसका शेप थोड़ा फ्लैट हो जाता है। उसकी वजह से ये जो रेडियस अर्थ की है ये इक्वेटर पर और पोल्स पर इक्वल नहीं होती। तो जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ता है, और पोल्स पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इक्वेटर पर इससे थोड़ा सा कम। इसी तरह से अगर हम अर्थ की सरफेस से बहुत ऊपर जाएं या अर्थ की अंदर डेप्थ में जाएं तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम सीक्वेंस में लिख लेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल है। अर्थ की सरफेस पर ये सेम माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज पोल्स और इक्वेटर पे होता है, और इसलिए अगर हमसे कोई पूछे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ पे मैक्सिमम कहाँ है तो हम बताएंगे पोल्स पे, और अगर कोई पूछे कि मिनिमम कहाँ है तो हम बताएंगे इक्वेटर पे। तो देयर इज लिटिल चेंज व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। इसके अलावा हम ये पॉइंट भी मेंशन करेंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हाई ऑल्टीट्यूड पे या अर्थ के डेप्थ में जाने पर कम होता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी पजल थी जिसने गैलीलियो को भी बहुत परेशान किया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, हर ऑब्जेक्ट के लिए यूनिफॉर्म है, अर्थ की सरफेस पर हर जगह यूनिफॉर्म है। इसका मतलब कि अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है जैसे कि आयरन बॉल और एक छोटा सा फेदर है किसी बर्ड का, दोनों को अगर हम घर की छत से नीचे गिराएं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों का सेम हो। तो इसका मतलब कि जिस रफ्तार से
आयरन बॉल की वेलोसिटी नीचे गिरते हुए बढ़ेगी, उसी रफ्तार से फेदर की वेलोसिटी भी बढ़नी चाहिए, और इसलिए दोनों की वेलोसिटी सेम रफ्तार से बढ़ेगी। दोनों सेम हाइट से गिर रहे हैं तो दोनों को सेम टाइम में अर्थ पर पहुंचना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस में क्या होता है कि हम हवा के एटमॉस्फेयर में उन चीज़ों को नीचे गिराते हैं, तो हवा का रेजिस्टेंस उनके गिरने के रफ्तार को कंट्रोल करता है, डिस्टर्ब करता है, और थोड़े से अंतर से बॉल पहले गिर जाती है। लेकिन अगर वैक्यूम में यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए, जो बाद में एक्चुअली परफॉर्म किया गया और पाया गया कि गैलीलियो जो सोचते थे कि दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेम टाइम पर अर्थ में गिरना चाहिए, वो बिल्कुल फैक्ट है। तो इफ एयर रेजिस्टेंस इज नॉट देयर इन वैक्यूम फॉर एग्जाम्पल, है ना, देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन does not depend upon heaviness of the body, mass of the body. It is uniform for all the object at the surface of earth. So a heavy object or a light object both will have equal change in their velocity in equal time interval. So if they are released from the same height, then they will reach to the ground simultaneously. And this observation was found true when both iron ball and feather, a heavy object and a light object, were released from the same height in vacuum. तो आज हमने एक्सेलरेशन के बारे में सारे पॉइंट्स समझे, सीखा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस करेंगे।